guys, welcome back to the channel. We are going with ossifying fibroma. We have seen that it is a slow growing benign neoplasm, and then we have seen that when it is small it is encapsulated initially, but as soon as it enlarges in size, the capsule loses and it infiltrates into the adjacent bone. Then we have seen that sometimes it is also known as gigantiform cementomas. Earlier, not sometimes, earlier, but now it is not known like that. We have seen that in histological part that there are many calcific deposits. So they have been also referred to as cementifying fibroma and ossifying fibroma both, but that calcified deposit actually represent dysmorphic osteoid, so better we call it as ossifying fibroma. And we have also seen that CT scan is a valuable diagnostic tool, and we have seen methylene bisphosphonate uptake, and we have also seen that it cortices expand equally and it displaces the adjacent structure. So we'll be continuing the treatment plan. Now coming to treatment plan, as we have studied in last class, that early tumor that are small and encapsulated are treated by enucleation and curettage. We have seen because it is encapsulated we can go for enucleation and curettage. Then we have seen that resection is required. We have seen the criteria for resection: if involvement of the inferior border, maxillary sinus, nasal cavity, or if there is loss of capsulation, encapsulation का लॉस है, then we'll go for resection. However, both resection and enucleation का जो result होता है वो almost same होता है. Then we have seen that margin should not be larger than 5 mm resection margin. And we have seen if enucleation and curettage is used, bony cavity is best left to regenerate normal bone. bony cavity को ऐसे ही छोड़ देते हैं, normal bone regenerate हो जाता है. लेकिन अगर हम लोग रिसेक्शन यूज़ करते हैं तो स्टेबलाइजेशन विथ रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट और इमीडिएट बोनी रिकन्स्ट्रक्शन में भी अकम्प्लिश. या तो वो हम लोग स्टेबलाइजेशन करेंगे रिकॉन प्लेट से और इमीडिएट बोनी रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे. लेकिन अगर हम ये करते हैं बोनी रिकन्स्ट्रक्शन, देयर आर चांसेस फॉर इन्फेक्शन ऑल्सो, बिकॉज देयर इज़ वेरी ओपन स्पेस लेफ्ट इन द, सो ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा. ड्यू टू एक्सपेंशन जो स्पेस, खाली स्पेस है वो ज़्यादा है इसमें. सो बोनी रिकन्स्ट्रक्शन कैन बी कंसिडर्ड, बट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं व्हेन वी गो फॉर बोनी रिकन्स्ट्रक्शन. ओके, नाउ coming to resection in the maxilla do not require excision of the overlying mucosa unless it is ulcerated from the occlusal injury. Okay, we have seen कि कभी कभी एक्सपेंशन इतना ज़्यादा होता है कि अपोजिंग टीथ की वजह से ऊपर वाला म्यूकोजा अल्सरेट हो जाता है. तो मैक्सिला में रिसेक्शन तभी करेंगे जब अल्सरेशन होगा. अपोजिंग म्यूकोजा मतलब जो म्यूकोजा अपोजिंग म्यूकोजा में अल्सरेशन है. ओके, मे बी इमीडिएटली रिकन्स्ट्रक्शन विद द बोन इफ़ द ट्यूमर इज़ स्मॉल. और अगर ट्यूमर स्मॉल है तो मैक्सिला में हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं इमीडिएटली बोन से. हम लोग मैंडिबल में भी कर सकते हैं, मैंडिबल में भी करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, क्योंकि रिसेक्शन हमेशा हम लोग लार्ज ट्यूमर में कर रहे हैं. अगर लार्ज है तो जो लेफ़्ट ओवर स्पेसेस है वो भी ज़्यादा है, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है. ओके, प्रोग्नोसिस एंड फॉलो अप, द रिकरेंस रेट इज़ वेरी स्लो. अगर आप रिसेक्शन भी कर रहे हो या इन्यूक्लेशन क्यूरेटाज कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, रिसेक्शन रेट बहुत कम है. बट फॉलो अप विद द 10 ईयर्स रेडियोग्राफ शुड बी कंसिडर्ड. क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, इसलिए 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स के रेडियोग्राफ्स होने चाहिए फॉर द फॉलो अप. Okay, that's all about ossifying fibroma. Now we'll be going with central giant cell tumor. I'll giving you a brief about that. Okay, they are benign but aggressively destructive osteolytic lesions. ये benign neoplasm होते हैं but they are destructive, aggressively destructive osteolytic lesion. These tumors seems to represent osteoclastic origin. Okay, दे आर नॉट यूनिक टू द जॉज एंड आर नॉट ओडोंटोजेनिक. ऐसा नहीं है सिर्फ जॉज में मिलते हैं और ओडोंटोजेनिक नेचर के होते हैं, लॉन्ग बोन्स में भी मिलते हैं. द जाइंट सेल हैव ऑस्टियोक्लास्ट रिसेप्टर एंड दस आइदर रिप्रेजेंट ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर्स और ऑस्टियोक्लास्ट स्टेम सेल.
तो ये जो जाइंट सेल है, क्योंकि वी हैव सीन दैट इट इज़ अ ऑस्टियोक्लास्टिक ओरिजिन ट्यूमर, सो ये जो जाइंट सेल है या तो ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर को रिप्रेजेंट करते हैं या तो खुद ये ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, क्योंकि इनमें ये रिसेप्टर होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के लिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.